देखिए, ये बयान तो उन्होंने 2022 में भी दिया, किसने सुना? ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है। Latest statement by RSS chief Mohan Bhagwat has sparked a big controversy where he spoke on Mandir and Masjid. Let's first find out what exactly he said. Underlining Ram Temple in Ayodhya was a matter of faith for Hindus, RSS chief Mohan Bhagwat has said that it is unacceptable to rake up such new issues on a daily basis simply because of extreme hatred, malice, enmity, and suspicion. His remarks come amid the debate over the Places of Worship Act, the challenge to the validity of which is before the Supreme Court, and the clamour of surveys of mosques and dargahs in different parts of the country. In his address on Vishwaguru Bharat at a lecture series in Pune on Thursday, Bhagwat said, and I quote, Ram Temple is a matter of faith for Hindus. The Hindus believed Ram Temple should be constructed, but by doing that, one does not become a Hindu leader. Leaders from BJP, opposition and religious leaders have reacted on this. देखिए, ये बयान तो उन्होंने 2022 में भी दिया, किसने सुना? संभल में वाकया हो गया, हर जगह हो गया, बाबरी मस्जिद तक रखा था, उसके बाद मथुरा काशी हो गई, 16 या 18 मस्जिद हो गई, और हद तो ये हो गई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है। तो अब तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिन बोतल के बाहर आ गया है, ना योगी सुन रहा है, ना धर्माचार्य सुन रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। मुल्क का माहौल ख़राब कर दिया। मीडिया ने जो 10 साल तक एंटी मुस्लिम मामला चलाए, ये सब उसके नताइज हैं। और सितम और बाला सितम ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ बोलते ही नहीं है। तो माहौल तो इन्होंने ख़राब कर दिया है। इन्होंने शेर की सवारी कर ली, अब उतर नहीं सकते, अब शेर इनको खा जाएगा। आज मोहन भागवत की नहीं सुनना है, जबकि ये सोचना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस के वजूद से आई है और गवर्नमेंट में है, पावर में है। मिस्टर नरेंद्र मोदी को इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, बट इट्स टू लेट। माहौल ख़राब कर दिया है इन्होंने। होना चाहिए, पर अपनी ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। RSS chief Mohan Bhagwat need not worry about the world. Let him worry about our own country, India. Who is creating misunderstanding in India? It is RSS and RSS affiliated organizations. They are creating misunderstanding. They are spreading hatred. They are polarizing the people. Mr. Bhagwat should know this. Who is creating religious conflict in India? Who is creating communal clashes in India? It is RSS and affiliate organizations. Why Mr. Mohan Bhagwat doesn't speak in a straightforward way? He tries to advise the whole world. You please advise your own people in India, your own affiliated organizations in India. They are raising the issue of cow, they are raising the issue of beef, they are raising the issue of love jihad, all jihads. Who is raising this issue? It is RSS and its affiliates. That is what Mr. Mohan Bhagwat, if he is very honest, straightforward, let him speak the truth. Who is creating misunderstanding? It is RSS and affiliate organizations are creating misunderstanding. ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें, कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। लेकिन भागवत जी का बयान किस तरह से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मस्जिद, हर मस्जिद में मंदिर ना खोलें?
और नेता बनने के लिए काम न किया। संत मांग कर रहे हैं कि सभी जो विवादित जो धर्म स्थान है उनको खोजा जाए, लेकिन इससे दंगों की स्थिति भी पैदा हो रही है कहीं ना कहीं। कैसे इसके बीच का रास्ता? दंगे तो कुछ नहीं हो रहे, जो संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई। मोहन भागवत जी तो ये बात कह करके जो संघ और भाजपा के प्रति दूसरे को जो नजरिया रहती थी कि वो लोग सिर्फ एक बात की बात करते हैं, एक इज्म की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगता है कि वो लोग मानव धर्म की बात करते हैं और वो कहते हैं कि छिछला ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ के बारे में डीप में जाकर के सोचने का वो अगर संदेश दे रहे हैं तो हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और धर्म को किसी एक व्यक्ति से, किसी देश से, किसी और संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म का मतलब है धारण करना, धारण का मतलब है कि अच्छे काम के लिए, सद्बुद्ध का जन समुदाय के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जो काम करता है उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म अपना अपना है, वो दूरी पर, ऊंचाई पर, समय के अनुसार उसमें कहीं न कहीं चेंजेज हुआ करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चेंजेज के चलते कहे कि हम अच्छा हैं और वो कहे हम अच्छा का। इसके लिए उन्होंने ठीक कहा है कि किसी के खिलाफ बात बोलने के पहले उस धर्म के बारे में, उस चीज़ के बारे में गहराई से जांच करना चाहिए। पीएम मोदी कुवैत भी गए, अभी कुवैत के दौरे पर भी थे, उनको समझ रहे हैं पीएम मोदी की उपलब्धि। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान, भारत का ये सौभाग्य है कि 21वीं सदी के प्रथम चरण में हम लोगों को ऐसा नेतृत्व मिला है, चमत्कारिक नेतृत्व मिला है जो दैविक शक्तियों से परिपूर्ण है, जिसको मने समाज को छोड़ करके, देश को छोड़ करके, विश्व बंधुत्व को छोड़ करके और कुछ इसके दिमाग में नहीं है। वो कैसे देश हमारा बढ़े, कैसे यहाँ के लोग समृद्ध होवें, कैसे दुनिया में शांति रहे। आप देखा नरेंद्र मोदी जी ही थे जो शान के साथ एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलते हैं तो दूसरे तरफ पुतिन साहब से मिलते हैं। तो उसी प्रकार से आज वहाँ गए और उनको पुरस्कार मिला। तो हम समझते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड में कोई नेता वैसा नहीं कर रहा है। तो वो दे करके पुरस्कार अपने को एक तरह से समझिए कि पुरस्कृत किया है, अपने को कुछ सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी जी को उससे सम्मान से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। ऐसे हम लोगों को खुशी है कि भाई ठीक है, एक जगह वहाँ भी मालूम हुआ कि शायद वो सम्मान पाने वाला है, वो 37वां प्रधानमंत्री हैं, तो खुशी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उस सम्मान के हकदार नहीं हैं, बहुत बड़ा बड़ा सम्मान भी उनके सामने छोटा पड़ जाएगा जैसा काम उनका है। ठीक है, सद्भावना तो होनी चाहिए, लेकिन आखिर सद्भावना बिगाड़ कौन रहा है? जो हिंदू अपने मंदिर की दावा कर रहे हैं वो साक्ष्य और प्रमाण पे कर रहे हैं। जब वहां सर्वे टीम जा रही है तो पत्थरबाजी कौन कर रहा है? मस्जिदों से, घरों से पत्थरबाजी तो जिहादी कर रहा है ना। तो माननीय मोहन भागवत का कथन बिल्कुल असत्य है। मैं उसको निश्चित रूप से पिछले बार भी जो बयान दिया था उन्होंने कि कहाँ कहाँ मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर जहां जहां हमें सबूत मिलेगा वहां वहां खोजेंगे और अपने प्राचीन विरासत को हम लेके रहेंगे। अब मोहन भागवत जी राम मंदिर पे भी वो किया कि राम मंदिर बनने के बाद जिस प्रकार से नेता बनने का शौक लगा हुआ है, तो राम मंदिर का लड़ाई भाई संघ प्रमुख ने नहीं लड़ा, ना संघ ने लड़ा। राम मंदिर की लड़ाई हिंदू महासभा और कुछ हिंदू पक्षकारों ने और मुस्लिम पक्षकारों ने केस लड़ा और हिंदू पक्षकारों की जीत हुई, जिसमें प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के माध्यम से मैं खुद था। लेकिन निमंत्रण बुला रहे, बीफ खाने वाले बॉलीवुड को दे रहे हैं, संघ के ही प्रचारक जा जाके निमंत्रण दे रहे हैं और जो पक्षकार थे वो तो उनको बुलाया नहीं, फीता स्वयं भागवत जी काट रहे हैं। तो और इस तरह के बयान देकर के आप हिंदुओं को हतोत्साहित करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप समर्थन नहीं कर सकते तो आपको ये अधिकार नहीं है कि हिंदुओं को और उस पर हतोत्साहित करिए और जिहादियों का मनोबल बढ़ाइए। इससे तो जो कट्टरपंथी है उनका मनोबल बढ़ रहा है और कोई भी हिंदू पक्षकार बेवजह तो कर नहीं रहा। माननीय कोर्ट उसको सर्वे का आदेश दे रही है तब जा रहा है। तो आप क्या कोर्ट के ऊपर है? क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट
कि सर्वे जो हो रहा है तो कोर्ट को भी आप इसका मतलब कि आप अवमानना कर रहे हैं। तो ये मोहन भागवत जी का या तो उम्र का प्रभाव इनके ऊपर पड़ गया है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो जिहादियों का प्रभाव है तो भी ये बहुत ही गलत है। मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के बयान न दे जिससे हिंदू पक्षकारों का मनोबल डाउन हो और ये जो हिंदुत्व की और सनातन की और देश की विरासत की लड़ाई है उस धीमा पड़े। आप साथ नहीं देना चाहते बेवजह मत दीजिए, लेकिन इस तरह के बयान देकर जिहादियों का एक तरफ मनोबल आप बढ़ा रहे हैं और हिंदू संगठनों का गिरा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं निंदा करता हूं। आपको स्वयं तुरंत इस तरह के बयान को वापस लेना चाहिए और हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, सनातन धर्म ने कभी किसी सभ्यता से घृणा नफरत नहीं किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमेशा सनातन, चूंकि उसका कारण यह है कि सनातन के जो मूल जो हमारी शक्ति है वो वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है। हमने पूरे विश्व को जब परिवार माना है तो अनेक विचार हो सकते हैं, अनेक सभ्यताएं हो सकती है, हमें अनेक प्रकार की रहन सहन हो सकता है। हमने किसी से विरोध नहीं किया। अब देश का विभाजन भी हुआ तो लियाकत अली जिन्ना ने अपने स्वयं को अलग करने के लिए कहा कि हमारी खान पान सब रहन सहन सब कुछ अलग है। इतने सालों से तो सब एक साथ रह ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक मुस्लिम देश बन गया और भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो इसमें भी मुस्लिम रहे, लेकिन कोई आपत्ति नहीं रही। और वर्तमान में भी आज भी कोई विरोध करता है तो जो कट्टरपंथी हैं वो करते हैं। हिंदू ने कभी आप देखिए कई हिंदू सैकड़ों हिंदू परिवार रहेंगे, घर रहेंगे, एक मुस्लिम रहेगा, पूरी सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ उल्टा, अगर जो हिंदू कम है तो सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि उसके बेस में हिंदू सनातन के बेस में वसुधैव कुटुंबकम है, जियो और जीनो दो के सिद्धांत पे चलता है। तो ये हमेशा से सनातन धर्म ने अनेक सभ्यताओं को बचाया है, सबका सम्मान किया है और करता ही रहेगा। हिंदू को तो नेता बनना ही चाहिए, यदि अच्छे लोग नेता बने तो क्या बुराई है। दूसरा ये है कि जहाँ मंदिर हैं उन्हें तो मंदिर के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए सबको, और मंदिर को मंदिर कहने में बुराई क्या है। यदि आपने मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाया है तो ये तो आपकी समझदारी है कि आप उसे वापस करें, कहें कि भाई साहब ये आपका मंदिर था, अब हम आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि वो किसी कालखंड में तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्या और जगह नहीं थी मस्जिदें बनाने की? तो मंदिर तोड़ के ही क्यों बनाना है? आज कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए तो हम ही कहेंगे कि गलत है। हम किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर नहीं बनाना चाहते, लेकिन यदि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं तो मंदिर की वापसी होनी चाहिए, यही धर्म है।